شفافیت پر یقین رکھتی ہے۔ اگر ہمیں کم کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی انشاء بجا دیں۔ میں ڈرتا نہیں ہوں that I will be president for all Americans. Passport Zindabad, Pakistan Zindabad. جی السلام علیکم، اس وقت میں یہاں پر موجود ہوں لاہور کے ڈیفنس کے علاقے میں۔ میرے پیچھے آپ ایگزیکٹلی وہ جگہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر آج صبح دھماکہ ہوا ہے، جس کے بارے میں سی ٹی ڈی نے آج سویرے کہا تھا کہ یہاں کوئی بارودی مواد کے شواہد انہیں ملے ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے کی اپڈیٹ یہ ہے کہ لوکل پولیس کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر رات کو کچھ سلنڈرز لائے گئے تھے جو کہ ممکنہ طور پہ ان کا کوئی دھماکہ ہوا ہے، لیکن بہرحال سی ٹی ڈی اس بات پر اصرار کر رہی ہے کہ دہشت گردی کے عنصر کو خارج از امکان نہیں قرار دیا جا سکتا۔ 10 دن پہلے 13 فروری کو جب لاہور میں مال روڈ کا دھماکہ ہوا تھا، اس کے بعد سیکیورٹی کا اعلیٰ ترین اجلاس ہوا تھا لاہور میں۔ وزیر اعظم صاحب کی زیر صدارت پھر سہبند کا دھماکہ ہوا، ایک اور سیکیورٹی کا اجلاس ہوا۔ کل شام ہی پاک فوج کی طرف سے آپریشن رد الفساد کا اعلان کیا گیا ہے، پنجاب میں رینجز آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے، اور آج ایک بار پھر لاہور کو اپیرنٹلی بظاہر دہشت گردی کا نشانہ بنایا جانا یہ کتنا بڑا چیلنج ہے، نہ صرف پنجاب گورنمنٹ کے لیے بلکہ وفاقی حکومت کے لیے، کہ پنجاب جس کو بہت عرصے سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر دہشت گردوں کا، انتہا پسندوں کا ایک نیا گڑھ ڈیولپ ہو چکا ہے۔ ان تمام معاملات پر پروگرام میں بات کریں گے، خاص طور پہ پاکستان سپر لیگ کے فائنل، اس میں اب صرف 9 دن رہ گئے ہیں، اس کے قریب آنے کے ساتھ ساتھ لاہور میں اس قسم کے واقعات کا بڑھ جانا، پھر فوجی عدالتوں کا معاملہ ایک بہت بڑا ہے جس کے اب تک 5 اجلاس ہو چکے ہیں۔ آج بھی اجلاس ہوا لیکن بے نتیجہ رہا۔ پیپلز پارٹی کے کچھ نئے تحفظات سامنے آ گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی فوجی عدالتوں کے معاملے پہ آل پارٹیز کانفرنس بلانا چاہتی ہے، کل پھر سے ایک اجلاس ہے۔ یہ وہ تمام معاملات ہیں جن پر نہ صرف ہمارے حکمرانوں کو بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھے ہو کے سوچنا ہے کہ انہیں کس طرح یکسو ہو کے دہشت گردی کو ختم کرنے کے راستے پہ چلنا ہے۔ اس تمام ایشو پہ آج پروگرام میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پاناما کے حوالے سے بھی ظاہر ہے ایک آج بڑا فیصلہ آیا ہے، پروگرام کے اینڈ میں اس پر بات کریں گے، لیکن پہلے میرے ساتھ ہیں ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر حیدر اشرف صاحب، ان سے اپڈیٹ لیں گے کہ اس وقت کی اپڈیٹ کیا ہے۔ السلام علیکم ڈی آئی جی صاحب، اور یہ بتائیے گا کہ اس وقت تک کی اپڈیٹ کیا ہے، خاص طور پہ دھماکے کی نوعیت کے حوالے سے۔ جی تھینک یو ویری مچ غریدہ، اس میں ایسا ہے کہ ہم تمام اینگلز سے انویسٹیگیشن لے کے آگے چل رہے ہیں، اس میں ہم کوئی چیز بھی رول آؤٹ نہیں کر رہے۔ جو ہمارے پاس اینی شاہدین کے بیانات ہیں، جو کچھ فوٹیجز اویلیبل ہیں، اس کے مطابق صبح 11 بج کے تقریباً 12 منٹ پہ یہ بلاسٹ ہوا ہے۔ اب اس بلاسٹ کی کاز جاتی ہم ٹیررزم جو ہے اس کو اس لیے بھی تھوڑا سا اس کی طرف جو ہے ہماری انکلینیشن زیادہ ہے۔ ریزن یہ کوئی ایسا ٹائم نہیں تھا کہ جس ٹائم کے اوپر بلاسٹ ہوتا، نہ یہ کوئی ایسا ٹارگٹ تھا جہاں پہ ہائی پروفائل موجود تھا، نہ یہ کوئی ایسی جگہ تھی جس کو ٹارگٹ کر کے کوئی دشمن کریٹ کر سکتا۔ لیکن تھریٹس تو موجود تھے اس مارکیٹ کو لے کے، اس ایریا کو لے کے ڈی آئی جی صاحب۔ ایسا ہے، یہ تھریٹس جو ہیں یہ تو کنٹینیوسلی پورن کر رہے ہیں۔ تھریٹ تو ہر چیز کے لیے موجود ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے لیے بھی موجود ہے، تھریٹ تو ہاسپٹلس کے لیے ہے، کالجز کے لیے، تھریٹ تو ہر جگہ کے لیے، کیونکہ وی آر ان اے وار لائک سچویشن، اور وار میں ہم ایک ایسے دشمن سے لڑ رہے ہیں جو چھوٹے بڑے بچے عورت مرد کسی کی بھی کوئی تمیز نہیں کر رہا۔ تو جہاں کہیں بھی تھریٹ الرٹ ہوتا ہے وہاں پولیس بھی اور لا انفورسمنٹ بھی اپنی تمام ایس او پی کو
इम्प्लीमेंट करती है। डॉक्टर हैदर साहब, इसकी क्या वजह है कि अभी तक एक कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है? सीटीडी ने सुबह कहा था कि उसे यहाँ से कुछ बारूदी मवाद के शवाहिद मिले हैं। अब जो लोकल पुलिस है वो कह रही है कि जी रात को यहाँ पे कोई 4-5 सिलेंडर्स आए थे 45 किलो के। तो ये कंफ्यूजन अभी तक क्यों डेवलप है? 24 घंटे हो चुके हैं तकरीबन ऑलमोस्ट, अभी तक इस बात का तायुन नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पर धमाके की नौयत क्या थी। जी ऐसा है, बिल्कुल हम कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और ना हम कोई फैक्ट्स कंसील कर रहे हैं। हमारा मकसद एक रिजल्ट पे पहुंचना है, हमारा मकसद किसी ऐसे नतीजे पे है जो हमें इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सके और हमें कॉज जो है सर्टन करने में मदद कर सके, मुलजिमों को पकड़ने में में हमारी मदद हो सके। तो हम फॉरेंसिक एविडेंस का इंतजार कर रहे हैं। रूटीन में आपने देखा कि खुदा न खास्ता कहीं ब्लास्ट हो तो फौरन कह देते हैं कि ये ब्लास्ट है। अब चूंकि एनी शाहिदीन के बयान इस तरह के हैं कि जी यहाँ पे रात को गैस के सिलेंडर्स मूव किए, गैस की लीकेज भी नोट की गई और जो मालिक अल्लाह मग़फ़िरत करे वो उन्होंने यहाँ पे सफाई भी करवाई गैस लीकेज की स्मेल की वजह से कि जी स्मेल आ रही है। तो ये चीजें ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन में हमने देखनी है, ये हमारा हक भी है और हमारा फर्ज भी है कि हम इन तमाम चीजों को इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड करें। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त बाकी लाहौर में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है अब आइंदा के लिए? जी लाहौर पुलिस और लाहौर की तमाम लॉ एनफोर्समेंट जो है हाई अलर्ट पे है। हम जो हमारी एसओपी है उससे बढ़ के जो है जवान भी और मेरे ऑफिसर्स भी जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। हम स्नैप चेकिंग कर रहे हैं, कॉम्बिंग्स भी कर रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स को भी चेक कर रहे हैं। तो कंटिन्यूसली राउंड द क्लॉक मूव कर रहे हैं ताकि हम लाहौर को स्क्योर कर सकें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डीआईशन डॉक्टर हैदर अशरफ साहब अपडेट कर रहे थे। इस पे हम रिपोर्टर्स के साथ भी बात करेंगे, कुछ ऐनी शाहिदीन के साथ भी हम यहाँ पर बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं महमूद रशीद साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और मलिक अहमद खान साहब जो कि तर्जुमान पंजाब गवर्नमेंट है। मलिक अहमद खान साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो पहला सवाल मैं आपसे करूंगी। 10 दिनों के अंदर लाहौर में दहशतगर्दी की 2 बड़ी वारदातें हो जाना, इसके बारे में तो फिलहाल अभी तक कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही हैं, लेकिन बहरहाल आपने सुन लिया हैदर अशरफ साहब को, वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी को इसमें से निकाला खारिज इम्कान नहीं करार दिया जा सकता। क्या वजह है? क्या पंजाब गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड नहीं है? नहीं, देखें गरीदा, मैं प्रिपेयर्डनेस के हवाले से तो कोई डाउट नहीं है, प्रिपेयर्डनेस तो पूरी है, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देखना यह है कि जो इस वक्त सूरत हाल बनी और जो लाहौर ब्लास्ट के बाद बनी, जो पहला ब्लास्ट था जो चेरिंग क्रॉस पे हुआ, इससे पहले हम ये समझ रहे थे कि ज़रब-ए-अज़्ब के बाद जो आखिरी एक सुसाइड अटैक था वो गुलशन इकबाल पार्क में हुआ था और उसके बाद उनके जब लोग पकड़े गए और उनको उसका पूरा नेटवर्क टूटा तो अंदाज़ा ये किया जा रहा था कि शायद कोई बड़ी कामयाबी मिल गई है और इन लोगों को भगाने में हम कामयाब हो गए हैं और जो इलाके इनके कब्जे में थे वो भी ज़रब-ए-अज़्ब के नतीजे में आज़ाद हो गए। और फिर नेशनल एक्शन प्लान पे जो डिटेल्स थी कि उनके जो 16 नुकात हैं उन पर बड़ा काम भी किया गया, सीटीडी का काम किया गया और सीटीडी ने कितनी इफेक्टिवनेस के साथ लाहौर ब्लास्ट का जो नेटवर्क तोड़ा वो सारा ऑन रिकॉर्ड है। मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन आपका टाइम ज़ाया नहीं करूंगा। प्रिपेयर्डनेस पूरी है, ये एक जंग है और ये जंग कोई आज से या 10 दिन से या 1 साल से नहीं है। आप भी इसकी गवाह हैं, आप इसको कवर भी करती रही हैं और हम भी देख रहे हैं, वी आर ग्रोइंग अप और उसमें हमने देखा कि ये पिछली कम से कम 1-1.5 दिहाई से तो इस जंग के कई पोल टू पोल शिफ्ट्स हुए और इस पे हमने देखा कई नैरेटिव्स चेंज होते रहे, कहीं कैसी कैसी बात आती रही, लेकिन ये जंग हुकूमत की और दहशतगर्दों की नहीं है, ये जंग रियासत पाकिस्तान की और दहशतगर्द। मलिक अहमद साहब, आपको जरा इंटरप्ट करूंगी मैं। महमूद रशीद साहब, आप क्या कहते हैं? मलिक अहमद साहब कह रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट की प्रिपेयर्डनेस पूरी है, खासतौर पे कल ही पंजाब में रेंजर्स के ऑपरेशन का आगाज हुआ है, फुल फ्लज रद्दुल फसाद का पूरे मुल्क में आगाज हुआ है। आज लाहौर को एक बार फिर इस तरह से निशाना बनाया जाना, क्या कहेंगे आप? मैं ये समझता हूँ जी कि ये फैसला अगर कुछ अर्सा पहले कर लिया जाता, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से इसकी डिमांड होती रही असेंबली के फ्लोर पे भी बाहर भी कि ये जो रेंजर्स की आमद का और उन्हें यहाँ डिप्लॉय करने का फैसला अभी 1 दिन पहले हुआ है, ये अगर चंद माह पहले हो जाता तो मुमकिन है इस तरह के हादसात से हम बच सकते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब भी जरूरत है बहुत ज्यादा विजिलेंट रहने की और बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने की। रिलैक्स होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है और ये जो पैर दर पैर लाहौर जैसे शहर के अंदर इस तरह के वाकयात का होने का ये मकसद है, ये जो हमारा दुश्मन है
वो भी बड़ी प्लानिंग के साथ अपने मंसूबों के ऊपर अमल पैरा है और हमें एफर्ट्स को बढ़ाना होगा। और ख़ास तौर पर मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ये चाहिए और इन अदारों को भी चाहिए कि अवेयरनेस कैंपेन एक को भी शुरू करें। ये सिर्फ पुलिस या ये डिपार्टमेंट्स शायद ये बेबस होंगे इतने बड़े पब्लिक मुकामात के ऊपर ये सब कुछ करने के लिए अवाम को भी ज़हनी तौर पर तैयार। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं महमूद रशीद साहब के अवाम के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करनी चाहिए, खासतौर पे पुलिस और अवाम का राब्ता, ताकि इंटेलिजेंस उन्हें जहां जहां कोई मशकूक सरगर्मी नजर आ सके वो लोगों को इंटीमेट कर सके वो इदारों को। मेरे साथ चूंकि यहाँ पर बैरिस्टर आमिर हसन मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, बात हो रही है, महमूद रशीद साहब कह रहे हैं कि अवाम के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए ताकि कोई भी मशकूक सरगर्मी देखें, अगर यहाँ पे कोई बारूदी मवाद आया था तो कहीं से तो आया होगा, कोई मशकूक सरगर्मी किसी ने देखी होगी। एक तो इस पे के बारे में कहिएगा, दूसरा फौजी अदालत है, पीपल्स पार्टी को नए सिरे से तहफ्फुज़ात हो गए हैं जिसकी वजह से डिले होता जा रहा है फौजी अदालतों का मामला, ऐसा क्यों है? बहुत शुक्रिया। एक तो पहले मैं आज के वाक़े के बारे में बात करना चाहूँगा कि कहते हैं जी पंजाब गवर्नमेंट बड़ी प्रिपेयर है और हम एक शोर सुनते हैं गुड गस का, लेकिन सुबह से हमें ये नहीं पता, कभी कहा जा रहा है कि जनरेटर की प्रॉब्लम है, कभी हमें कहा जा रहा है कि यहाँ पे गैस लीकेज है, कभी कहा जा रहा है कि ब्लास्ट है। अगर तो अभी इतनी फोरेंसिक लैब्स के बाद आपको नहीं पता चलता है और चीज़ों के बाद कि आखिर वाक़या हुआ क्या है, तो क्या गुड गवर्नेंस और क्या चीज़ है। दूसरी बात, बिल्कुल ये जो जंग है दहशत गर्दी के खिलाफ, ये सिर्फ आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं लड़ेंगी, इसमें आवाम को इन्वॉल्व करना और इनका फिक्री महाज से ले करके इन्हें ट्रेन करना कि किस तरह पुलिस के साथ इनका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इससे मैं एग्री करता हूं और ये ज़रूरत है और गवर्नमेंट को इस पर करने की। जो बात आपने की है आर्मी कोर्ट्स के बारे में, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बादल नखास्ता इस बात को उस वक्त मंजूर किया था कि ठीक है मिलिट्री कोर्ट्स इस वक्त जितने हालात जिस किस्म के हैं इसमें मिलिट्री कोर्ट्स बना दिए जाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि आईनी तौर पे ये हल नहीं है। और उस वक्त भी गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हम अपने जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इस पर रिफॉर्म्स लेके आएंगे, लेकिन आपने देखा 2 साल गुजर गए और बिल्कुल जब अदालतों का टाइम खत्म हो गया तो उसके बाद इन्हें पॉलिटिकल पार्टीज नजर आ गई, ना तो इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर इसकी कोई बहस करवाते हैं ना बात करते हैं, ये चैम्बर्स के अंदर जाके मिलने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी मामले पर डिस्कशन को मजीद कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर में डिफेंस के उस इलाके में जहां आज सुबह लाहौर को एक बार फिर दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि कल ही पाक फौज की तरफ से पूरे मुल्क में ऑपरेशन रद्दुल फसाद का ऐलान किया गया था। आर्मी चीफ ने लाहौर में आके सिक्योरिटी का आला सतह का इजलास किया था और आज भी उन्होंने पूरी कौम को यकीन दिलाया है कि आर्मी खास तौर पर सिविल इदारों के साथ मिलकर अपनी मुकम्मल जिम्मेदारी को निभाती रहेगी और कौम में यकीनन बेचैनी पाई जाती है जब इस कदर के पैदर पे दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हों और मखसूस इलाकों को टारगेट किया जा रहा हो तो कौम के अंदर एक हैजानी कैफियत, एक बेचैनी की कैफियत जरूर पैदा होती है। लेकिन हुकूमत की तरफ से और ख़ास तौर पे पाक फौज की तरफ से, आर्मी चीफ की तरफ से कौम को बार बार यकीन दिलाया जा रहा है कि इदारों की तरफ से, रियासती इदारों की तरफ से एक्शन नजर आएगा और बहुत जल्द एक्शन नजर आएगा और इसीलिए ऑपरेशन रद्दुल फसाद को भी स्टार्ट किया गया है पूरे मुल्क में और पंजाब में रेंजर्स का ऑपरेशन किया गया है। लेकिन बहरहाल सवाल तो उठते हैं और वही सवाल उठाएंगे, बात करेंगे अपने एक्सप्रेस न्यूज के सीनियर रिपोर्टर्स के साथ। उमर याकूब मेरे साथ हैं, नोमान शेख मेरे साथ हैं, सुबह से यहाँ पर कवरेज भी कर रहे हैं। उमर आप बताएं, इस वक्त तक कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, अगरचे सीटीडी कह चुका है कि दहशतगर्दी के शवाहिद मिले हैं, बारूदी मवाद के शवाहिद मिले हैं, लेकिन फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि यहाँ पे सिलेंडर्स थे, हो सकता है कि गैस एक्सप्लोजन हो? क्या प्ले डाउन करने की कोशिश है ये? देखिए गरीदा, तकरीबन 8 घंटे बाद ये डिक्लेयर कर देना कि ये गैस का धमाका था। पहले ये पुरस्रार धमाका चलता रहा और तकरीबन कुछ 5:30 बजे के करीब सीटीडी के तर्जमान आए, उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि यहाँ से धमाका खेद मवाद मिला है, उसके शवाहिद मिले हैं, उसको लैब भिजवा दिया गया है। और अभी लैब टेस्ट से पहले ही चंद लम्हों बाद ही, मतलब कि 2 घंटों बाद ही उनकी तरफ से नई स्टेटमेंट आ गई कि ये गैस का धमाका कंफर्म हो गया। अब ये गैस का सिलेंडर फटने से धमाका है या सुई गैस का कोई कनेक्शन की वजह से धमाका है, ये भी कंफर्म नहीं है। लेकिन सुई गैस के हुकाम तो कह चुके हैं यहाँ से कि कोई सुई गैस की पाइपलाइन नहीं फटी। बिल्कुल, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 2 दिन बाद यहाँ पे ओपनिंग होनी थी तो उस वजह से सिलेंडर आए हुए थे। 45 किलो का एक सिलेंडर था जो कि गुज़िश्ता रात यहाँ पे 5 पहुंचे हैं। आज सिलेंडर नीचे पड़ा हुआ था, यहाँ पे टाइल लग रही थी, टाइल काटी जा रही थी, चिंगारियां जो है वो एक सिलेंडर पे पड़ी हैं जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ है।
लेकिन ये जिस नौयत का ब्लास्ट है, अभी कुछ भी कहना इसके बारे में कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि पहले सीटीडी वाले खुद कहते रहे कि बारूदी मवाद हमें मिला है, उसके बाद आप 8 घंटे बाद ही ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये गैस धमाका है, क्योंकि अभी जाए वकुआ से पहले जिस तरह वो बता रहे थे कि 2-3 फुट मलबा है जो हटाया जाना है, उसके बाद जाके पता चलेगा कि आया धमाका हुआ कैसे। ना तो अभी मलबा हटाया गया है, ना वहां से ये पता चला है कि ये धमाके की नौयत क्या थी। इसको बहुत जल्दी क्लेम किया जा रहा है, और ये पहले जैसे कि राणा सनाउल्लाह साहब सुबह से ही कह रहे हैं, कभी केमिकल धमाका कह रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं कि ये सिलेंडर धमाका था। इसको फिलहाल तो प्ले डाउन ही किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में PSL का फाइनल होने जाना है, उसके लिए बारे में अनाउंस किया गया है। तो अभी यही कोशिश की जा रही है कि अवाम में अफरा तफरी ना फैले, ना बाहर ये मैसेज आए कि टेररिज्म यहाँ पे अभी मौजूद है। तो इस वजह से अभी कुछ भी कहना इसमें कबल अज़ वक्त है। इसकी जो जामिया रिपोर्ट आएगी वो तकरीबन कम से कम 48 घंटे बाद आएगी, जिसमें तमाम लेबॉर्ट्रीज से सबूत मिल जाएंगे कि आया यहाँ पे हुआ क्या है। अब उमर आप बताएं कि इस किस्म के इलाके को पॉश इलाका है ये, और खासतौर पर रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर किसी का गुमान भी नहीं हो सकता कि यहाँ पर कोई दहशतगर्दी का अटैक हो सकता है। ऐसी जगह को टारगेट करने का मकसद क्या हो सकता है? थ्रेट तो यहाँ पर पहले से मौजूद थी, और अब लाहौर में ओवरऑल बाकी सिक्योरिटी कैसी है? नहीं, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं कि लाहौर के अंदर ये वो ऐसा एरिया है जहां पर हर बंदे की तलाशी होती है। अगर दाखिल होना है तो चाहे वो कोई खास मतलब मीडिया पर्सन को, हम अपनी जब गाड़ी यहाँ पर लेके आते हैं तो प्रॉपर तलाशी देने के बाद इस एरिया में एंटर होते हैं। तो यहाँ पर ये तो बड़ा मुमकिन ही नहीं है कि यहाँ पर कोई धमाका का मवाद आ जाए। लेकिन गुज़िश्ता 1 हफ्ते से 2 दफा यहाँ पर थ्रेट आई है, और इसी इलाके की है ये। यहाँ पर ये एक बेकरी है, उसकी थ्रेट आई थी कि वहां पर ब्लास्ट होना है। 2 बार यहाँ पर कॉल चली, पुलिस पहुंची, और गुज़िश्ता रात भी यहाँ पर एक सर्च ऑपरेशन किया गया है। मुख्तलिफ लोगों को चेक किया गया है कि यहाँ पर कोई धमाका खेज मवाद या कोई ऐसे लोग तो नहीं है, लेकिन वो क्लियर हो गए, और आज सुबह ये वाकया हो गया। फिर वो उसको 8 घंटे तक उसको ये इस बात का तयन ही नहीं कर सके। फोरेंसिक साइंस एजेंसी है, क्राइम सीन यूनिट है। आपको जरा इंटरप्ट करूंगी, राणा साहब वजीर कानून पंजाब हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम राणा सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और ये बताइएगा कि धमाके की नौयत के बारे में अभी तक कंफ्यूजन क्यों है? आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं? दहशतगर्दी हुई है, बारूदी मवाद यहाँ से उसके शवाहिद मिले हैं, या सिलेंडर ब्लास्ट हैं? सिचुएशन क्या है, आवाम जानना चाहती है। देखिए, इसमें ये है कि ये जो जिस प्लाजा में या बिल्डिंग में ये धमाका हुआ है, उसकी जो ग्राउंड फ्लोर पे ये धमाका हुआ है, और सारा मलबा जो है वो बिल्डिंग का जो है वो नीचे बेसमेंट तक जो है वो जाके गिर गया है, और बिल्डिंग जो है वो इस वक्त ऐसी कंडीशन में है कि वो डेंजरस है। अब जो फोरेंसिक लेबॉर्ट्री जो है, जो कि सही मानों में इसका हतमी तयन करने की कैपेसिटी रखती है कि ये धमाके की नौयत क्या थी, उनको बिल्डिंग जो है वो जब तक एक्सेस नहीं दी जाती बिल्डिंग में, उस वक्त तक वो अपना काम नहीं कर सकते। अब बिल्डिंग जो है वो जब तक इंजीनियरिंग ब्रांच वाले जो है वो इसको या तो सपोर्ट दें और उसके बाद मलबा उसके अंदर से निकालें, या उस बिल्डिंग को जो है वो क्लियर करें, तो इसलिए जो है वो इस मामले में जो है वो देर हुई है। अब उम्मीद है कि सीटीडी ने सुबह जो शवाहिद राणा साहब जमा किए हैं, सीटीडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है इनिशियल कि यहाँ से बारूदी मवाद के शवाहिद मिले हैं। अब बारूदी मवाद किस किस्म का है उसका तायुन किया जाना था। देखिए, इसमें ये है कि ये असेसमेंट है, और ये वहाँ पे जो हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, लेबॉर्ट्री वालों ने, फोरेंसिक लेबॉर्ट्री वालों ने तो अभी तक उन्होंने कहा कि हमें आप बिल्डिंग क्लियर करके दें, और उसके बाद जो है वो हम आपको इसके ऊपर हतमी राय दे सकते हैं। जो अभी तक जो है वो उनको बिल्डिंग जो है उनके हवाले नहीं की जा सकी। जो हमारी दूसरी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है, उनकी असेसमेंट है। एक राय ये है कि ये एक्सप्लोसिव था और उसका ये बहुत शदीद धमाका हुआ, और उसकी वजह से जो है ये सारा नुकसान हुआ। लेकिन उसमें दूसरी राय जो है उसमें भी वजन है कि अगर वहां पे बम नस्ब था तो फिर जख्मियों को पिलेट्स लगने चाहिए थे, बॉल वेरिंग लगने चाहिए थे, या वो छर्रे जो होते हैं बम में वो लगने चाहिए थे। अगर खुद को चेक करती तो फिर भी ऐसा होना चाहिए था। राणा सना साहब, इस वक्त राणा सना साहब, आवाम में बेचैनी भी है, और आवाम जानना भी चाहते हैं कि हुकूमत कितनी प्रिपेयर्ड है उनकी सिक्योरिटी के लिए, खासतौर पर जबकि पंजाब में रेंजर्स का ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है, ऑपरेशन रद्दुल फसाद भी शुरू हो चुका है। तो ये कंफ्यूजन तो कम से कम दूर कीजिए कि ये ब्लास्ट आखिर इसकी नौयत क्या थी, ये कब तक कंफ्यूजन क्लियर हो सकेगी आवाम के लिए? ये इस वक्त तो उस बिल्डिंग को जो है वो क्लियर किया जा रहा है, उसके बाद जो ही वो फोरेंसिक लेबॉर्ट्री के सुपुर्द होती है तो वो बहुत जल्द जो है वो इसका तयन करके वो एक हतमी और वेरीफाइड रिपोर्ट होगी, उससे जो है वो मीडिया को भी और आवाम को भी आगाह कर दिया जाएगा। और ये कब तक हो जाएगा राणा साहब? देखिए, ये अभी इस वक्त बिल्डिंग को जो है वो कोई
1 घंटा पहले की खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बिल्डिंग को जो है वो क्लियर किया जा रहा था। लेकिन ये दोनों तरह के जो है वो शवाहद मौजूद हैं, क्योंकि कोई भी जख्मी जो है उसको ना तो कोई बॉल वेयरिंग, ना उसको कोई जो है वो इस किस्म की कोई पेलेट्स जो है वो लगी है, बल्कि तमाम के तमाम जो है उनको मलबा जो धमाका होने से ब्लो अप हुआ है मटेरियल, वो या वहाँ पे जो शीशे बिल्डिंग्स के टूटे हैं उनकी वजह से लोग जख्मी भी हुए और हलाकते भी हुए। राणा साहब, कल से जब से पंजाब में रेंजर्स को ऑपरेशन के इख्तियार दिए गए हैं तो उसमें यह कहा गया है कि पंजाब में जो एरियाज पंजाब गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी वहां पे ऑपरेशन होगा। अब लाहौर 2 बार टारगेट बन चुका है, क्या लाहौर उन स्पेसिफाइड एरियाज में है और लाहौर में रेंजर्स के ऑपरेशन की सूरत हाल क्या रहेगी? देखिए, रेंजर्स के ऑपरेशन जो है वो स्पेसिफाइड एरियाज के अलावा जो है वो IBOs यानी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे, और उसके लिए कोई स्पेसिफाइड एरिया नहीं है। जहां भी कोई इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन देगी कि यहाँ पे कोई ऐसी बात हो सकती है, तो वहां पे देर एंड देन जो है वो रेंजर्स, CTD, पुलिस और दूसरी फोर्सेस जो है वो वहां पे कार्रवाई करने की मजाज है और कार्रवाई करेंगी। जी, और आप क्या कहेंगे पंजाब के अवाम को कि कितना सिक्योर है पंजाब इस वक्त, खासतौर पे लाहौर की सिक्योरिटी के हवाले से क्या कहेंगे आप? एश्योर करवाएंगे अवाम को? इसमें देखिए, अब बात ये है कि अभी तक जो है वो इस धमाके से मुतल्लक, क्योंकि एक खबर ये भी है कि एक जख्मी ने ये बयान दिया है कि जी वहाँ पे कल सिलेंडर जो है वो गैस के 4 मंगवाए गए थे, 1 ऊपर ले जाया गया था और 3 वहाँ पे जो है वो मौजूद थे। अब अभी कोई बात हतमी नहीं कही जा सकती कि ये गैस की वजह से हुआ है, किसी केमिकल की वजह से हुआ है या एक्सप्लोसिव की वजह से हुआ है। आप पंजाब के अवाम को, लाहौर के अवाम को सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाएंगे राणा सना साहब? जी, हम 100% जो है वो लाहौर के अवाम को यकीन दहानी भी करवाते हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये दहशत गर्दों के खिलाफ जो जंग है ये पूरी कौम ने और पूरे हमारे जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है ये पूरी जुर्रत के साथ और पुरअज़म तरीके से जो है वो हमने लड़नी है, और इसको हर कीमत पे जो है वो इसको हमने जीतना है, इसमें कामयाब होना है। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर पंजाब राणा सनाउल्लाह साहब हमसे बात कर रहे थे और एश्योर करवा रहे थे कि आइंदा इस किस्म का कोई भी दहशत गर्दी का या किसी भी किस्म का खौफ का तासुब फैलाने वाला कोई भी वाकया पंजाब में नहीं होने दिया जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बैरिस्टर आमिर हसन साहब भी हमारे साथ हैं, मलिक अहमद खान साहब भी हैं, महमूद रशीद साहब भी हैं और जनरल अमजद शुएब साहब भी होंगे। एक ब्रेक लेकर जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं लाहौर में दहशत गर्दी के वाकये के हवाले से। हमारे साथ जनरल अमजद शुएब साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। यहाँ बैरिस्टर आमिर हसन पीपल्स पार्टी के मेरे साथ हैं, मलिक अहमद खान साहब तर्जुमान पंजाब गवर्नमेंट और महमूद रशीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी हमारे साथ हैं। चलो अमजद शुएब साहब, आपके पास में आऊंगी। फरमाइएगा, कल ही ऑपरेशन रद्दुल फसाद पूरे मुल्क में शुरू किया गया है, पंजाब में रेंजर्स का ऑपरेशन, उसके बाद आज लाहौर को एक बार फिर टारगेट बना दिया जाना, क्या कहीं पे कोई खामी रह रही है जनरल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब भी कोई वाक़या होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कहीं कमजोरी जो कि टेररिस्ट एक्सप्लॉइट करते हैं वो तो लाजमन होती है और तहकीकात के जरिए ही अंदाजा होता है। लेकिन जो ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू किया गया है उसके असरात और उसके जो भी समरात आप चाहते हैं उसको हासिल करने में मेरा ख्याल है 4-1 हफ्ते लगेंगे। उससे पहले शायद उसका इम्पैक्ट हमें इतना नजर ना आए, क्योंकि जो वाकयात हो रहे हैं ये कोई आज शुरू नहीं हुए यहाँ पे। इसके लिए जो तैयारी की गई वो थोड़ी पीछे मेरा ख्याल है उसका वक्त जाता है। मैं पहले भी इस चीज के ऊपर जो मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सका हूँ, फाटा में खास तौर पे नॉर्थ वजीरिस्तान में जब हम IDPs को वापस लेके आए हैं तो 2 लाख के करीब हमारे लोग जो हैं वो क्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान में गए हुए थे। उनमें से कहा जाता है कि 1-1.25 लाख के करीब वापस आए हैं, जिनमें कुछ लोग छुप के ऐसे भी पहुंचे हैं जो आगे मुल्क में फैल गए हैं मुख्तलिफ जगहों में। और 1-1.5 महीना 2 महीने चूंकि हमारा कुछ फोकस हटा हुआ था तो ये लोग वहाँ पे अपने अपने इलाकों में मौजूद हैं और ऊपर से जैसे उनको अहकामात मिलते हैं उसके मुताबिक वो वाकयात कर रहे हैं। आज का वाकयात कता नजर, क्योंकि इसका तो अभी तक चूंकि कोई वाज़ेह चीज पता नहीं है तो उससे दहशत गर्दी से स्ट्रेट अवे जोड़ना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं होगा जब तक कि कोई हतमी चीज सामने ना आ जाए। लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि हमें ज़हन में रखना चाहिए कि ये एक जंग है जिसमें तातुल तो हो सकता है, वक्ती तौर पे कोई ब्रेक आ सकती है, वक्ती तौर पे ऊंच नीच हो सकती है,
لیکن یہ وہ جنگ ہے جہاں پہ کراس دا بارڈر ایک ایسا دشمن ہے جس کو 3 بڑی قوتوں کی اعانت حاصل ہے، مدد حاصل ہے. اس میں NDS شامل ہے، اس میں را شامل ہے، اس میں CIA شامل ہے، اور ان کو باقاعدہ انفارمیشن مہیا کی جاتی ہے، جو ان کے پاس ٹیکنیکل ذرائع سارے موجود ہیں، ان کو پیسہ دیا جاتا ہے، اور یہ سارا کام اس میں جنرل صاحب آرمی چیف قمر جاوید باجوہ بھی کہہ چکے ہیں کہ بھارت کس طرح سے ملوث ہے پاکستان میں دہشت گردی کروانے میں، اس کا سب علم ہے، اس کے سب ثبوت بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. اب جنرل صاحب معاملہ یہ ہے کہ کل آپریشن رد الفساد بھی شروع ہو چکا. جی آپ کہیے. جی میں ایک چیز جو ایڈ کرنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ جب ہم نے کل بوشن کو انٹیروگیٹ کیا تھا تو اس نے یہی 2 چیزیں کہی تھیں کہ ہمارا ایک مقصد، اس کو ایک ٹاسک یہ دیا گیا تھا کہ عوام میں اتنا خوف و ہراس پیدا کیا جائے کہ ان کا اپنی حکومت پہ اعتماد اٹھ جائے اور عوام اور حکومت کے درمیان دوری پیدا ہو. دوسرا وہ فوج کے بارے میں بد اعتمادی پیدا کرنا چاہتے تھے کہ ان کے آپریشن جو ہیں وہ کامیاب نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نہ صرف یہ لوگ اپنے طور پہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں بڑی حد تک انہوں نے وہ ایفیکٹ کریٹ کیا ہے جو وہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ جنرل بکرم سنگھ کی سٹیٹمنٹ جو بھی سرکولیٹ کر رہی ہے اگر اس کو ذہن میں رکھیں تو اس نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی کرایا جائے گا یہ پاکستانی لوگوں سے ہی کرایا جائے گا، کیونکہ وہاں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو پیسے لے کے ہمارے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے. یہ اس نے ایک فیوچرسٹک بات کر دی، لیکن فیوچرسٹک یہ ایکچولی کیا جا رہا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہماری آستینوں کے سانپ ہیں ان کو پکڑا جائے. آج وہ لوگ سامنے لانے چاہیے جو ہندوستان کا نیریٹو لے کے اس کو پلیٹ کرتے ہیں، جو افغانستان کے نیریٹو کو پلیٹ کرتے ہیں اور بد اعتمادی پیدا کرتے ہیں اپنے اداروں کے بارے میں، بد اعتمادی پیدا کرتے ہیں حکومت کے بارے میں، گو کہ ہماری اپنی کمزوریاں بھی موجود ہیں. اب ہم نے نیشنل ایکشن پلان کو پوری طرح امپلیمنٹ نہیں کیا، اس کو بڑا ویگورسلی پرسو کرنے کی ضرورت ہے، اور رد الفساد میں یہ کہا گیا کہ ہم اس پہ کریں گے. فوجی عدالتوں کے حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے جنرل صاحب، فوجی عدالتوں کے حوالے سے کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں ہو پا رہا ہے. آپ کے پاس دوبارہ بھی آؤں گی، اس میں بھی دیکھ لیجئے. جی جنرل صاحب آپ کے پاس میں دوبارہ بھی آؤں گی کیونکہ پیپلز پارٹی کے بیرسٹر عامر حسن صاحب جو کہ ہمارے موجود ہیں، ان سے فوجی عدالتوں کے معاملے پر ہی بات ہو رہی تھی. بیرسٹر عامر حسن صاحب، کیا آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ فوجی عدالتوں کے معاملے پہ ایک بلا وجہ کی سیاسی تاخیر یا سیاست چمکائی جا رہی ہے؟ دیکھیں اس میں سیاسی تاخیر کی بات نہیں، آپ کا آئین جس چیز کی اجازت نہیں دیتا. بڑے مشکل حالات میں ایک فیصلہ ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہوا تھا کہ ہم ریفارمز لے کے آئیں گے، وہ نہیں ہوئی. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ معاملات ہیں تو پارلیمنٹ کے اندر اسے ڈسکس کیا جائے. ہم کبھی بھی نہیں روکتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر اس معاملے کو لے کے آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ملٹری. لیکن پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو رہا ہے، پارلیمانی اجلاس 5 ہو چکے ہیں، بے نتیجہ ہیں. اب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے APC بلانا چاہتی ہے. وہ تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. اور دیکھیں رائے عامہ ایک طرف تو کہتی ہے کہ فوج کو آپریشن میں مصروف کیا ہوا ہے، جو کہ کام فوج بہتر طریقے سے کر رہی ہے اور کر سکتی ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ جو جتنی ہے جوڈیشل کام کے اندر اگر ہم فوج کو انگیج کریں گے تو یہ کہاں کا بھلا ہے؟ ہمارے پاس عدالتیں ہیں، ہمارے پاس آزاد عدلیہ ہے، ہمارے پاس اسپیشل کورٹس ہیں، ہمارے پاس اینٹی ٹیررزم کے کورٹس ہیں. ہم کیوں ان سے کام نہیں لیتے ہیں؟ ہم بہت بہتر طریقے سے اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کو اگر بہتر کریں تو فوائد آ سکتے ہیں. دیکھیں اگر آپ ہر کام فوج پہ ڈالتے جائیں گے تو یہی مسائل ہیں جس کا پاکستان کو سامنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمیں اس معاملے کو پارلیمنٹ کے اندر لے کے آنا چاہیے. گورنمنٹ کو بتانا چاہیے کہ 2 سال کے اندر جنہوں نے کیا ریفارمز لے کے آئے ہیں یہ کوئی حل نہیں ہے. اس کا جواب آپ عدالتیں بھی فوج کے حوالے کر دیں. اس کا جواب لیتے ہیں ملک احمد خان صاحب سے. ملک احمد خان صاحب، نون لیگ کی طرف بات آ رہی ہے کیونکہ نون لیگ چاہتی ہے کہ فوجی عدالتوں کو توسیع دی جائے، 3 سال کی مزید دی جائے یا اس سے بھی زیادہ کی دی جائے. اب پیپلز پارٹی کی بات آپ نے سن لی. ملک احمد خان صاحب، کیا حل ہے اس کا؟ دیکھیں ابھی جو بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے ان کی یہ بات بالکل کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کے اعتبار سے بڑی درست ہے، بٹ ان دیز ایکسٹراڈنری سچویشنز جب آپ کے پچھلے چند روز کے اندر 127 کے قریب وکٹمز ہیں جو بلاسٹ میں شہید ہوئے ہیں، اور جب روز ایک نئے بم دھماکے کی خبر مل رہی ہے، اور جب ایک سیکیورٹی پیراڈائم بالکل ٹوٹلی کمپلیٹلی شفٹ ہو رہی ہے، اور پھر ان ریفارمز کی بات کرنا جو کہ پورے جوڈیشل سسٹم کی ری ویمپنگ 24 ماہ میں ممکن نہیں تھی. اور شاید جب یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی گئی تھی تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کا یہ کنسنسس تھا کہ 24 ماہ اس لیے رکھے جائیں گے کہ اس کو ایک وے فارورڈ دے دی جائے گی، اور ضرب عضب کے ڈیویڈنڈز اگر ہمیں پراپرلی مل جاتے اور اگر ان کے نتیجے میں یہ جتنے لوگ ہم نے بھگائے تھے یہ ری گروپ نہ ہوتے اور نیشنل ایکشن پلان پہ آن دا اسکیل آف 1 to 10 وہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے جس سے ڈیزائرڈ ریزلٹس مل جاتے،
तो प्रोबेबली शायद इस एक्सटेंशन की जरूरत ना पड़ती, कौमें उम्मीद पर जिंदा रहती हैं। लेकिन आज के हालात में ये जो नैरेटिव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, इसकी जो लॉजिक है वो उसकी पॉलिटिकल करेक्टनेस पे कोई दो राय नहीं है। हमारे सिविलियन कोर्ट्स की और हमारी जो हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, बाकी कोर्ट्स हैं, उनकी सैंक्टिटी मुकद्दस। मलिक अहमद साहब, मुझे यही सवाल लेके जरा महमूद रशीद साहब के पास जाने दीजिएगा। महमूद साहब, आपने बात सुन ली, पीपल्स पार्टी की भी, नून लीग की भी बात सुन ली, आपका भी वही मौकिफ है, फौजी अदालतों पे आप लोगों को भी एतराजात हैं, तहफ्फुजात हैं, लेकिन ये बताइए कि कहां पर ऐसी चीज है कि जो अभी भी ठीक करने की जरूरत है हुकूमती साइड पे, सिविलियन इदारों की साइड पे, क्योंकि पाक फौज तैयार है ऑपरेशन के लिए, रेंजर्स का पंजाब में शुरू हो गया, रद्दुल फसाद पूरे मुल्क में शुरू हो गया, ज़रबे अज़्म अलग से चल रहा है, आईबीओस अलग चल रहे हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशंस अलग चल रहे हैं, हुकूमतों के लिए कहां पर मजीद काम करने की जरूरत है? देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि इस वक्त जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हमारे हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर के एतबार से, दहशतगर्दी के वाक़यात के एतबार से, इन मखसूस हालात के अंदर इसके अलावा कोई चारा नज़र नहीं आता कि हम ये जो फौजी अदालतें हैं उसमें हम तोसी करें। लेकिन जहां पर नेग्लिजेंस हुई है और ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि आखिरी रोज तक इन्होंने इंतजार किया कि इनका टाइम लैप्स हो जाए और उसके बाद इन्होंने टेकअप करना शुरू किया। क्या 6 माह पहले ये सारी एक्सरसाइज नहीं हो सकती थी? क्या 1.5 साल के बाद इन्हें ये नहीं चाहिए था कि ये इसके ऊपर अपना पूरा होमवर्क करते? और जो बातें दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात थी, प्रोसिक्यूशन को बेहतर करना था, कैपेसिटी बिल्डिंग थी, हमारा जुडिशियल जो रिफॉर्म्स थी वो आनी थी, इन्वेस्टिगेशन के जो अदारे थे उनको बेहतर बनाना था, तो ये सारी चीजें हुकूमत ने इस पे कितनी पेशरफ्त की है वो भी तो कोई जवाब नहीं मिल रहा। अगर 0/0 है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, तो फिर लोगों का एतराज तो जायज है। फिर जब 2 साल खत्म हो गए तो आपने महमूद रशीद साहब एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे और चला अमजद शेख साहब के सामने भी यही सवालात रखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं लाहौर में आज होने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। चलो अमजद शेख साहब आपके पास में होंगे, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे कि अंदरूनी तौर पे जो अनासर हमारे खिलाफ हैं उन्हें भी आइडेंटिफाई करना है और जो बैरूनी अनासर की कार्रवाई है उन्हें भी आइडेंटिफाई करना है ताकि जो नए ऑपरेशन स्टार्ट हुए हैं उन्हें कामयाब बनाया जा सके। क्या कहेंगे आप इस पर, सजेशन क्या होगी आपकी? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी भी जंग में दुश्मन को आप किसी न किसी शक्ल में कम करते हैं ताकि आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहे और उससे मुकाबले में आपकी फतह हो। और वो कम करने का पहला तरीका तो ये है कि बॉर्डर्स पे ज्यादा तवज्जो दी जाए ताकि अंदर आने वाले लोगों की तादाद कम हो। दूसरी तरफ रीइंफोर्समेंट रोकने का एक तरीकाकार होना चाहिए और वो इसी तरह आपको पता लगेगा कि जितने भी वाकयात होते हैं अगर हम उनका तजिया करें तो हमें अंदाजा हो जाता है कि किस बैकग्राउंड के लोग थे जिनको इस्तेमाल किया गया। चुनाचे उनमें मदारस भी निकलेंगे, मसाजिद भी निकलेंगी, उनमें आम आदमी, गुर्बतज़दा, चुनाचे वहां पे जो नैरेटिव ये सेल करते हैं और जिन लोगों को वरगला के ले जाते हैं दीन के नाम पे, वो जगह हैं जहां आपने एड्रेस करना होगा और वहां के उलमा, वहां के जो ज़ोमा लोग हैं उनके जरिए एक नैरेटिव प्रवेल करेगा वहां पे जो जिसको आप पहले पहुंचाएंगे लोगों तक कि ये दीन नहीं है। अब मुश्किल ये है कि अगर आप जंग लड़ते रहें और रीइंफोर्समेंट्स लगातार उनको मिलती रहे तो इसका तो इख्तिताम कभी भी नहीं होगा। आप भी लड़ते रहेंगे, वो भी लड़ते रहेंगे। तो ये करना बड़ा जरूरी है क्योंकि ये हमारे ही इलाकों से, महमूद रशीद साहब आपके पास में होंगी। आपने अमजद शेख साहब की बात भी सुन ली, राणा सनाउल्लाह साहब की बात भी सुन ली जो कहते हैं कि अब लाहौर और पूरा पंजाब मुकम्मल सिक्योर है। क्या कहेंगे आप महमूद रशीद साहब? मैं बिल्कुल भी, ये इनके सिर्फ दावे हैं और मैं नहीं समझता ये सही बात कह रहे हैं। ये तो बहुत अरसा पहले कह रहे थे कि पंजाब बिल्कुल महफूज है और यहाँ छोटू डकैत गैंग इनसे संभाला नहीं गया था, वहां भी फौज और रेंजर्स ने आके उसको काबू किया था। ये दहशतगर्दी के पूरे अफरियत को कंट्रोल करना और उसके ऊपर काबू पाना ये एक बहुत बड़ा टास्क है और मैं समझता हूँ इस तरह के दावे जो हैं वो खोखले दावे हैं, ये हकीकी दावे नहीं है। जब तक जैसे अभी जनरल साहब कह रहे थे कि असल जो इसके असबाब है उसके ऊपर हम नहीं जाते, यानी फाटा रिफॉर्म्स की बात हुई थी, नेशनल एक्शन प्लान के अंदर देख लें, अब फाटा के लोगों को, अब वजीरिस्तान के लोगों को मेन स्ट्रीम में आप लेकर नहीं आते, उनको एड्रेस नहीं करते,
اس کے اندر وہاں اصلاحات نہیں کرتے اور وہاں پر کمیٹی گورنمنٹ نے بنائی اور انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے فاٹا کو ضم کر دیں آپ کے پی کے اندر اور اس کو بھی ڈیلے کر دیا گیا ہے. تو یہ جب بنیادی فیصلے آپ جب تک ان کو ٹیک اپ نہیں کرتے اور پرائورٹی نمبر 1 ہے, نمبر 1 پرائورٹی اگر آپ کی یہ نہیں ہوتی تو اس کے اندر کمی نہیں ہو سکتی. بہت سے بنیادی فیصلے جو کرنے ہیں. بیرسٹر عامر حسن صاحب سے بھی مجھے کلوزنگ کمنٹس لینے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, نیشنل الیکشن پلان کو اس نے نیشنل ری ایکشن پلان بنا دیا ہے. جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ بڑے فوری طور پہ عمل کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں. ہمیں ماننا پڑے گا, کنفیوژن کو ختم کرنا پڑے گا. دہشت گردی اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اسے اسی طرح ایڈریس کیا جائے. اور اگر آپ کے وزیر داخلہ سہولت کار ہوں گے, آپ کے پنجاب کے معذرت کے ساتھ وزیر قانون ان کے سہولت کار ہوں گے اور آپ کنفیوژن کریٹ کرتے رہیں گے تو پھر یہ معاملہ حل ہونے کو نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب گورنمنٹ کو اسے سیریسلی لینی چاہیے. کبھی ان کا تعلق رہا ہوگا ان تنظیموں کے ساتھ اور ان کی ہمدردیاں رہی ہوں گی, لیکن خدا کے لیے اب لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں قربانیاں دی. اب سمجھیں اور نیشنل الیکشن پلان پہ عمل کریں. پارلیمنٹ فلور ہے, ادھر آئیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر عامر حسن. احمد خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. محمود رشید صاحب, جنرل امجد شعیب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ تھا آج کا پروگرام دیکھنے کا. شکریہ. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.